3 बायो हो गई है अपनी, ठीक है ना? ये तो मेरे पास है, ये अभी करंट O2 बायो O2 ये है मेरे पास। O2 बायो O2 कॉमर्स का दे दीजिए, ठीक है, कॉमर्स भी दे दीजिए, ठीक, थैंक यू। मतलब यूनिफॉर्म में होना चाहिए, आज का दिन का ठीक है, बढ़िए, सही, बस बिल्कुल सही, ठीक है। Provided to you afterwards, and it will be helpful for you to revise your work, which we will be doing in the class, and that will be helpful for you to have the condition anytime for this. Then anyone who has any query will raise hand. The option is there, and then I will unmute the student, and the student can ask the question, and that question will be directed towards me, and that question definitely will be resolved accordingly. Then I would expect every one of you to have some writing material with you. So that whatever I will explain on the board, that should be copied. Moreover, it should not only be copied, but it should be taken as a snapshot. मैं उसके लिए भी बताता रहूँगा कि चलो इसका snapshot ले लो ताकि वो हर स्टूडेंट के पास रिकॉर्ड रहे। कॉपी करने का मकसद ये है कि अगर आप कुछ कॉपी करते हैं तो वो आपको याद रहता है। जुनैर तारिक, I think your camera is not on. Why is it so? Everyone should have some writing material with them, so that whenever we have the condition of writing after the explanation, that should be copied. And these are the things which will not be repeated every day. It is only the condition which I am doing today as the first day, so that you should all know my expectation, and my expectation definitely should be considered in the forthcoming
classes, because जो कुछ हम क्लास में करेंगे वो ऐसी कंडीशन होगी कि जिसको हम सिर्फ और सिर्फ इन बातों को फॉलो करने की वजह से दिमाग में पहुंचा सकें. Because maths definitely is a subject which normally seems to be difficult, but at times when you do the things as a practice and the condition, then it becomes easy for you to do things together. Second last thing, everyone should make it a habit to revise everything that had been done in the class. Everyday work regularly. It will be easier for you to understand things properly, and it will be easier for me to get to know how you people are responding. And the last thing that should be kept in mind, you must all have everyday work done regularly. Means if I give you some homework or some classwork to be done which is to be done on the same day, it should be done on the same day. We won't go for the other day कि आज हाँ काम नहीं हुआ तो फिर हम कल कर लेंगे, या कल नहीं हुआ तो परसों कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. रेगुलर रहोगे, प्रैक्टिस होती जाएगी. You won't find it difficult to attend my class or to have the condition in my class. You definitely will have all the situations acquainted with you, and that will definitely make you people a good student in my class and a good student in this CI. अब ये चीजें तो दिमाग में रखनी है, इसका स्नैपशॉट ले लो ताकि ये सबके पास रहे. ठीक है, स्नैपशॉट जैसे जैसे जब मैं कहा कर उनके स्नैपशॉट ले लो तो स्नैपशॉट ले लिया करो. इन चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये साथ साथ रहेंगी. ये सब तो कहीं भी कुछ फॉलो नहीं हो रहा होगा. आई विल डेफिनेटली शो कि ये देखो मैंने पहले बता दिया था, ये कंडीशन साथ साथ होनी चाहिए. अच्छा, अब आओ ज़रा सिचुएशन जो हमें क्या करना है. यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि जब हम मैथ्स का पेपर करते हैं तो मैथ्स का पेपर CAIE के सिलेबस के मुताबिक, जिसका 4024 हमारा सब्जेक्ट कोड है, वो दो तरह के पेपर्स पर मुश्तमिल होता है. दो तरह के पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक पेपर 2. ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 क्या डिफरेंस होता है दोनों में. पेपर 1 होता है मेंटल मैथ्स वाला. इसका मतलब है पेपर 1 में आपको कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन नहीं होती. इसको कहते हैं हम लोग नॉन कैलकुलेटर वर्जन ऑफ द पेपर. ठीक है, जबकि पेपर 2 में क्या होता है कि इसमें आप मैथ विद कैलकुलेटर करते हैं. ठीक है, फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे मैं पेपर की कुछ पैटर्न को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये आप लोगों के दिमाग में शुरू से आए. अब 2 साल में जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे इन चीज़ों की बार बार कुछ. अच्छा, ये भी देखना कि अब जितने भी हमारे पास क्विजेज, टेस्ट या एग्जाम हुआ करेंगे उनमें हमेशा पेपर 1 पेपर 2 दोनों आता रहेगा. उसके साथ साथ आपको कंडीशन रखनी होगी कि आपको किस तरीके से किस पेपर की तैयारी करनी है. ये 2 साल में आप प्रैक्टिस इतनी अच्छी अच्छे तरीके से कि when you will be appearing in the examination you will have no problem in dealing with the condition. ठीक, अब ये भी देखो साथ साथ पेपर 1 जो होता है वो होता है 80 मार्क्स का, जबकि पेपर 2 होता है 100 मार्क्स का. ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर जो होता है उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स, और जो 100 मार्क्स है उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है
2 hours and 30 minutes. अच्छा, पेपर दोनों में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको सबके सब ही करने वाले हैं। चॉइस अब खत्म हो चुकी है। आज से 2 साल पहले तक चॉइस होती थी, अब चॉइस खत्म हो गई है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको सबके सब करने होते हैं। तो इसलिए ये तो आपको दिमाग में रखना है कि रेडी टू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन है जो शुरू से ही दिमाग में रहती है। अच्छा, इसमें टाइम लिमिट जो है वो ऐसी है कि कभी कभी ऐसा लगता है पेपर शायद खत्म ना हो पाए, लेकिन जो लोग शुरू से ये प्रैक्टिस में रखते हैं अपने आप को, उनके लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है। जब मैं बार बार ये शुरू से और रेगुलर प्रैक्टिस की बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि आप इस रेगुलर प्रैक्टिस को हैबिट के तौर पे बनाओगे तो ही आप ये सारे काम आसानी से कर सकते। अब देखो, जब 2 आवर्स का पेपर होगा तो इसमें अबाउट 25 क्वेश्चंस आते हैं। शुरू में 1 मार्क का भी क्वेश्चन होता है, 2 मार्क का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, मैक्सिमम 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और जो ये 100 मार्क्स वाला पेपर है, इसमें आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं। मैं जो भी टॉपिक करूंगा उसमें आपको पेपर 1, पेपर 2 से रिलेटेड सारी की सारी कंडीशन बताता रहूंगा और आपको उस तरीके से दिमाग में रखना है। अच्छा, अब जरा एक काम करो, रेज हैंड दोज हु हैव गॉट बुक 3 विद यू। मतलब अभी ना हो बट घर में है कि जब भी हो जरूरत तो वो बुक 3 यूज की जा सके। रेज हैंड करो तरफ मुझे पता चल जाए, क्योंकि फिर अगर लोगों के पास नहीं है तो फिर मैं उसका कुछ सोल्यूशन भी बताऊंगा। उमर के पास है, ठीक है, अब्दुल समद के पास नहीं है, अस्मा खुर्रम के पास नहीं है, मोहम्मद फजल सलमान के पास नहीं है, जुनैर तारिक के पास नहीं है, उमर अहमद के पास नहीं है। अभी भी और सोच लो जरा, अगर किसी और के पास भी है तो बता दो, क्योंकि अगर बुक होती है तो वो आपके पास बेहतरीन कंडीशन है, बट जिसके पास बुक नहीं है उसका फिर मैं सोल्यूशन बताया करूँगा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस करने हैं, जो काम करना है, उसमें ये सब चीज़ें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब अभी तक 3 लोग हैं जिनके पास नहीं है, बाकी सबके पास अभी है। ठीक है, अस्मा खुर्रम, जुनैर तारिक एंड उमर अहमद के पास नहीं है। लेट्स सी। ठीक ठीक है, लोअर योर हैंड। अब देखो, अब ये पूछने का मकसद क्या था कि जब हमारे पास सिचुएशन हो ऐसी वाली जिसमें मैं कुछ काम दूंगा तो वो काम जो है वो डेफिनेटली करना होगा। वो कैसे करना होगा? सबसे पहली बात ये है कि यू पीपल शुड हैव द बुक विद यू। आप वो कर सकते हो। और सेकंड थिंग, अगर बुक नहीं होगा तो मैं यहाँ पे सारी एक्सरसाइजेस जो मैं एज अ होमवर्क दिया करूँगा वो अपलोड कर दूँगा, उसको ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना। अच्छा, दूसरी बात, रिकॉर्डिंग यहाँ पे हर क्लास में होगी, तो रिकॉर्डिंग भी आपके पास वहाँ मौजूद होगी आपके LMS में। वहाँ से आप जिस वक्त चाहें ये रिकॉर्डिंग ले लें और उसको देख सकते हैं बार बार। ठीक है, तो ये तो कंडीशन आ गई हमारी, तो आज की एक्सपेक्टेशन हो गई और कुछ एक जनरल बैकग्राउंड के तौर पे मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं जरा आगे। Who is this Abdullah Hashmi? I can't see the name. I can't see the name in the list. Can anyone here
टेल मी, अब्दुल्ला हाशमी का किसी और सरनेम के साथ कोई लिस्ट में नाम नहीं होगा? किसी को अगर पता है ताकि फिर मैं फिर उसको एडमिट करूँ ही नहीं करूँगी, मुझे पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक है आगा मोहम्मद अब्दुल्ला। अब आई डोंट नो कि ये अब्दुल्ला हाशमी है या कोई और है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट तो आई कांट एडमिट अ पर्सन हु इज नॉट देयर इन द लिस्ट। अब्दुल्ला नासिर, ठीक है, ठीक है, चलिए अब्दुल्ला नासिर हाशमी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फजल, थैंक यू बेटा। लेकिन फिर ये क्या बात है कि अगर उसने स्कूल छोड़ दिया है तो फिर हाउ इज ही एंटरिंग हियर? अच्छा, ये तो खैर आप बोल रहे हो ना कि स्कूल छोड़ दिया है। वी डोंट नो अबाउट दिस बिकॉज अब्दुल्ला नासिर, एज यू आर सेइंग, अब्दुल्ला नासिर यहाँ मेरे पास लिस्ट में है। आई विल जस्ट टॉक टू द मैनेजमेंट कि अगर ऐसी कोई बात होगी फिर उसको यहाँ पे मेरे पास लिस्ट नहीं है। ठीक ठीक, चलो इट्स ओके, ओके, देखते हैं। आई एम जस्ट एडमिटिंग हिम राइट नाउ, उसके बाद कल चेक कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चलो अब देखो जरा, अब जब हमारे पास ये सिचुएशन आ गई कि हमें कौन से टॉपिक करने हैं, तो उनमें सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। और अब उस पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हम कुछ काम की बातें करते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में जो हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमें ये देखना है कि दिस टॉपिक इज एक्चुअली रिलेटेड टू द बेसिक टॉपिक ऑफ CI दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ से कंडीशन दिए हैं जिसको आपको लिखते जाना है ऐसा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या मतलब हुआ? ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री इज सेड टू बी द स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को हम लोग सबसे पहले इस तरीके से पहचानते हैं कि ये 3 साइडेड फिगर होती है, ठीक है। इसमें 3 एंगल्स और 3 साइड्स होते हैं। एंगल्स को हम लोग एक और नाम भी देते हैं जो हमें याद रखना चाहिए, हम लोग उसको एंगल्स भी कहते हैं, हम उसे कॉर्नर्स भी कहते हैं। और जो टिपिकल लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है उसके लिहाज से एंगल्स और कॉर्नर्स को हम लोग एक और नाम देते हैं, ये दिमाग में रखना, वर्टेक्स। क्यों? एग्जाम में आपके पास एंगल्स और कॉर्नर्स की बजाय ये वर्टेक्स वर्ड लिखा हुआ आएगा। जहां वर्टेक्स वर्ड लिखा हुआ आ जाए समझ जाना कि यू आर हैविंग द एंगल ऑफ इट। अगर एक है वर्टेक्स और अगर प्लूरल है तो इट विल बी वर्टिसेस। ये वर्डिंग दिमाग में रहेगी। अब ट्रायंगल का मतलब हो गया कि a figure, a closed figure having 3 sides and 3 vertices. ठीक? Basically, when we deal with the trigonometry, it normally consists of 2 types of triangles. Number 1, right angled triangle, and number 2, non-right angled triangle. ठीक है। अब ये भी सिचुएशन दिमाग में रखो कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल, नॉन राइट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि ये हमारे सामने होना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर आता है तो उसका मतलब ये कंडीशन रहे, हमें पता चलती रहे। अब कैसे, ये देखो। सबसे पहली कंडीशन कि ये जो राइट एंगल्ड वर्ड है ये भी आपके सामने रहना चाहिए। मैं सारी टर्मिनोलॉजी इसलिए बताता जाऊंगा
कि वो अगर आपने कहीं किसी ज़माने में पढ़ा होगा तो उसकी रिवीजन हो जाएगी, और सपोज अगर नहीं पढ़ा कभी भी तो वो आपको याद हो जाना चाहिए, आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल्ड मतलब एंगल से रिलेटेड है, तो एंगल को हमें कंसिडर करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि एंगल जब मैथ्स में हम यूज करते हैं तो उसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, इंग्लिश लेटर क्यू के जैसा लगता है और इसको पढ़ते हैं थीटा। जैसे वेरिएबल एक्स यूज करते हैं हम लोग किसी नंबर के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से एंगल के लिए हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल थीटा। अब जहां कहीं भी थीटा आए तो समझ जाना कि ये रिलेटेड टू द एंगल। ठीक है, स्क्रीन का लैपटॉप स्नैपशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ा दूं। अच्छा, याद रखना कि जब लिखते हो ना कुछ, तो वो लिखी हुई चीज आपने जो अपने हाथ से लिखी होगी वो आपके दिमाग में जाती है, तो लिखना अच्छी बात है। और अब आप लोग ग्रेड 10 में हो, तो ग्रेड 10 में जो आपके पास जिन जिन पेपर में आपको अपियर होना है, मतलब इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज एंड उर्दू, तो उसमें लिखना बहुत पड़ता है। अगर आपकी प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट में लिखने की रहे तो whenever you will be appearing in the examination it will be easier for you to have this condition। और अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहती है तो फिर आप प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं, उसकी वजह से कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। खैर, मैं अच्छी बातें बताता रहा करूँगा, और ये अच्छी बातें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेरे टॉपिक से रिलेटेड हो, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, बाकी सारे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड होंगे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई हैव अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ CIE एग्जामिनेशन, और बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, बहुत सारी जगहों पे खुद वर्कशॉप्स दी हैं, ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग दी है, तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें पता चलती रहेगी, तो वो छोटी छोटी बातें आपके बहुत काम आएंगी, और वो काम आएंगी तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हो। एंड यू डेफिनेटली आर फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चंस, आई विल डेफिनेटली बी देयर टू हेल्प यू। अच्छा, आप देखो जरा, एंगल्स को डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड करते हैं, उन काइंड्स को आपको दिमाग में रखना होगा। अगर थीटा की वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो उसको हम नाम देते हैं अक्यूट एंगल। अगर थीटा की वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री है तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 है तो इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 180, बल्कि ग्रेटर देन 180 से पहले इक्वल टू 180 तो होना चाहिए, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू इक्वल टू 180 हो तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, मतलब वो स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर थीटा की वैल्यू मोर देन 180 और लेस देन 360 है, वी कॉल दैट एंगल रिफ्लेक्स एंगल। और अगर थीटा की वैल्यू इक्वल टू 360 हो जाए तो उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ये वर्डिंग भी आपने काम की है, टर्मिनोलॉजी। मैं सारी टर्मिनोलॉजी, सारी कंडीशंस आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप उन वर्डिंग्स से फेमिलियर रहें और पता चले कि जिस वक्त हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि ये वर्ड आ जाए, हमें मिल जाए कि हाँ ये वर्ड है, तो वो वर्ड हमारे सामने क्लियर हो, तो हमें पता है। नहीं पता होगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये कंडीशन आपके सामने। इसका भी स्नैपशॉट लो।
और try to do these things as a practice so that next class में जब आओ तो ये सब चीज़ें दिमाग में हो। मैं नेक्स्ट टाइम में जो भी स्टूडेंट यहाँ पे होंगे मैं उनसे बारी बारी क्वेश्चन पूछूंगा कि ये था इसका क्या मतलब है, ये था इसका क्या मतलब है, ये था इसका क्या मतलब है। तो वो सिचुएशन आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है भाई। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल्स हमारे सामने हैं, तो ये एंगल्स का हमें पता होगा। अब आगे चलते हैं। As we were talking about right angled triangle, तो right angle से क्या पता चला कि एक 90 डिग्री एंगल इन्वॉल्व होना चाहिए। अब 90 डिग्री एंगल है तो इसका मतलब हुआ एक ऐसा ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा ट्राइंगल होगा तो इसका मतलब है इसको हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? ये जो सिंबल यहाँ पे मैंने बना दिया है, ये सिंबल 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, शायद ये ऐसे हो, ठीक है, किसी भी तरीके से होगा, राइट एंगल ट्राइंगल नजर आता रहेगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल जब आपके पास है तो फिर अब आप क्या देखेंगे? देखिए, इस ट्राइंगल में या कोई भी पॉलीगॉन हो या कोई भी शेप हो, जो हमारा मैथ्स का रूल है वो कहता है कि वर्टिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर से मार्क करते हैं। वर्टिसेस का मतलब एंगल्स, एंगल्स को हमेशा कैपिटल लेटर से मार्क करते हैं। मतलब ये देखो, अगर हम इसको लेबल करें ए, कैपिटल बी, तो कैपिटल सी, और साइड्स को हमेशा स्मॉल लेटर से लेबल करते हैं। और स्मॉल लेटर से लेबल करने का तरीका भी देख लो, हर एंगल के सामने जो साइड होगी वही अल्फाबेट उसके लिए यूज करें। जैसे ये ए है तो ए के सामने ये वाली साइड है, वी कॉल दिस स्मॉल ए। बी ये है, इसके सामने ये है, दिस साइड इज टेकन टू बी स्मॉल बी। और ये जो सी है, इसके सामने वाली ये जो साइड है, इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये ए बी सी ना होता, पी क्यू आर होता है, तो स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बस क्या पहचान है कि अगर कैपिटल लेटर है तो समझ जाओ कि ये एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर स्मॉल लेटर्स है तो समझ जाओ कि ये साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये भी सिचुएशन यूज होती है कि जब हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग ए बी सी डी के अलावा इनके साइड्स के नामों से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से? ये देखो, 90 डिग्री के सामने जो है, जो साइड, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 डिग्री के सामने हमेशा जो साइड होगी, स्लैंटिंग साइड होगी, सबसे बड़ी साइड होगी, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इसके अलावा जो दो एंगल्स होंगे उनमें से किसी एक को भी हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये थीटा जो है इसका मतलब ये हो गया कि वो एंगल जो हमारे काम का एंगल है, या जिसमें हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, या जिसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे आगे बहुत सारी और कैलकुलेशन में, ट्रिग्नोमेट्री। अब थीटा से क्या आसानी होती है कि जो दो साइड हमारे सामने होते हैं, एक थीटा के साथ होता है और एक दूसरी कंडीशन वाला होता है। थीटा के साथ जो भी साइड होगी थीटा के साथ वाली साइड को हम लोग नाम देते हैं बेस,
इसको हम एक और नाम देते हैं एडजेसेंट, और बाकी जब तीसरी साइड बच गई उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर या फिर ऑपोजिट। ठीक है, पहचान आपने याद रखनी है बेस की, क्योंकि बेस आपने पहचान लिया तो परपेंडिकुलर जो बाकी बचता है वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या क्या चीजें याद रखो, 90 डिग्री के सामने वाली जो स्लांटिंग साइड होगी, सबसे बड़ी साइड होगी, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल होगा, उस एंगल के साथ हमेशा बेस होगा। ठीक है, और फिर जो तीसरी साइड बच गई वो परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्राइंगल को ऐसे लेना, देखो, और इसको मैंने बना दिया थीटा, तो ये हो गया सबसे पहले आपका हाइपोटेन्यूज 90 के सामने। हाइपोटेन्यूज और थीटा के साथ होता है बेस, और तीसरी साइड जो बच गई दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको कि हाइपोटेन्यूज और थीटा के साथ बेस और तीसरी साइड है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लो इसका ताकि फिर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम बता दूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये देखो, वो है फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, ये ध्यान में रखना। कोई और ट्राइंगल होगा तो उसमें आप ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास दो साइड्स अवेलेबल हैं तो इसके जरिए से आप तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं कोई भी। जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है, हमें दे दिया जाए ये 13 और ये 5 सेंटीमीटर, और हमसे कह रहे हैं फाइंड करो ये मिसिंग साइड। ठीक है, अब जबकि थीटा कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है तो आप इस थीटा को कहीं पे भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोल देता हूं कि ये थीटा है। अब इसका मतलब हो गया दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, थीटा के साथ ये बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस बेस। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्मूले में रख देंगे 13 स्क्वायर Hmm. थर्टीन स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर ये देखो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके उमर बेटा,
मैंने अब शेयर कर दिया बोर्ड, देख लो। ठीक है, तो 13 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर परपेंडिकुलर और प्लस बेस स्क्वायर लाइक दिस। अब अगर कैलकुलेटर वर्जन है तो आप कैलकुलेटर से करें, और अगर कैलकुलेटर नहीं है तो बिना कैलकुलेटर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बगैर कैलकुलेटर के आते हैं। दिस बिकम्स 169 equal to 25 plus b square. 25 will be shifted to the other side, so it will be like this. 169 minus 25 will give you 144 as b square. ठीक है, we need to find out the value of b. e square नहीं चाहिए, तो फिर हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं। स्क्वायर रूट यहाँ पे तो इसको कैंसिल करके b बना देगा, और 144 का जो स्क्वायर रूट है that will be taken as 12. This will be the value of your base. बिल्कुल ठीक है, गुड। ये अच्छी बात है कि कैलकुलेशन आप लोग साथ साथ करते जाओगे तो ऐसे भी आपकी प्रैक्टिस रहेगी। एग्जाम में वो लोग जिनकी कैलकुलेशन तेज होती है, जो हैबिचुअल होते हैं डूइंग दिस, वो बहुत कामयाब होते हैं। ठीक है बेटा, फिर जरा इस कैलकुलेशन की भी स्नैपशॉट ले लो, क्योंकि द टाइम फॉर टुडेज क्लास इज ओवर। वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। और फिर अगेन द कंडीशन कि व्हेन वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, you should revise all these things before coming to the class. और मैं किसी को भी, जो यहाँ लोग मौजूद हैं अभी, किसी को भी मैं बोल सकता हूँ कि he will or she will revise the thing for me. So be careful at that time, and definitely it should be the situation which you people should be aware of. ठीक है, okay. Allah Hafiz. We'll see each other in the next class.